Bismillahirrahmanirrahim. From English verse in the syllabus of BA, today we are going to discuss Departure and Arrival by T.S. Eliot. He is Nobel Prize holder. He got Nobel Prize in 1948. T.S. Eliot was born in 1888 and he died in 1965. That means that he was a poet of 20th century. 20वीं सदी का पोएट है और ये आज पोएम भी 20वीं सदी के बारे में ही कहेगा. जो पोएम में से जो थीम डिस्कस किया है वो 20th सेंचुरी के बारे में है. First you watch the pronunciation line to line and after this we will discuss what is the theme and the meaning of the words and what are the meanings of the sentences in the poem. Standing upon the shore of all we know, we linger for a moment doubtfully. Then with a song upon our lips sail we across the harbor bar, no chart to show, no light to warn of rocks which lie below. But let us yet put forth courageously. Although the path be tortuous and slow, although it bristles with a thousand fears, to hopeful eye of youth it still appears a lane by which the rose and soon grow. We hope it may be, would that we might know, would we might look into the future years. Great duties call the 20th century, more grandly doer than those which came before. Summons, who knows what time may hold in store, or what great deed the distant years may see, what conquest over pain and misery, what heroes greater than were ever of yore. But if this century is to be more great, then those before her sons must make her so. And we are of her sons and we must go. With eager hearts to help mold well her fate, and see that she shall gain such proud estate, and shall on future centuries bestow a legacy. Legacy nahi, legacy. A legacy of benefits may we in future years be found by those who try to labor for the good until they die and ask no other questions than to know that they have helped the cause to victory, that with their aid the flag is raised on high. Sometime in distant years when we are grown, grey-haired and old, whatever we be our lot, we shall desire to see gain the spot which whatsoever we have been or done, or to what distant lands we may have gone, through all the years will never have been forgot. T.S. Eliot is known as a reformer poet. T.S. Eliot is a greatest critic, बहुत अच्छा critic है. At the same time he is a reformer poet. Reform करने के मूड में होता है. Here his motto is not to reform a single nation, not he want to reform a country or specific bulk of people. He want to include the whole human beings for the betterment of the 20th century. Poet जिस सेंचुरी में मौजूद था वो 20th सेंचुरी थी, 20वीं सदी. आप कौन सी सेंचुरी में बैठे हुए हैं? 21st है ये. इससे पीछे वाली सेंचुरी वो 20th सेंचुरी थी. पोइट 20th सेंचुरी का है और पोइट ये कहता है, वो कहता है कि आओ तमाम बनी नूह मिलकर, तमाम इंसान मिलकर आओ हम इस सेंचुरी को खूबसूरत और बेहतर कर देते हैं. इस सेंचुरी में तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं इस पूरी सेंचुरी को बेटर करने के लिए, ताकि ये सेंचुरी आने वाली सदियों को, आने वाली सेंचुरी को एक बहुत बड़ी लेगेसी दे सके, एक बहुत बड़ा विरसा मुंतकिल कर सके. और वो जो आने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन हमारी है,
21st सेंचुरी में आने वाले लोग हैं वो आकर ये कहें कि जो 20th सेंचुरी के लोग थे दे वर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत काम करने वाले, बहुत मेहनती लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए। पोइट कहता है जिंदगी एक समंदर की तरह है और हम समंदर के किनारे पर होते हैं और फिर हम समंदर के बारे में जितना एक नॉलेज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और उस नॉलेज को लेकर हम घबराते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे बढ़ने से घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं कि आगे कैसे बढ़ें। क्यों हेजिटेट करते हैं? इसलिए क्योंकि हमें समंदर की पानी की तह के नीचे छुपी हुई चट्टानों का कोई अंदाजा नहीं है, कहाँ पर चट्टानें छुपी हुई हैं। खतरात से हम वाकिफ नहीं हैं, जिंदगी में पता नहीं क्या हो जाए। कोई बात नहीं, हमारे पास इवन के थोड़ा सा नॉलेज है फ्यूचर का, लेकिन फिर भी एक गीत को होठों पर सजाए आओ अपना सफर शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जो मेहनत करने वाले और पुरुमीद लोग होते हैं उनके लिए कांटों की गलियां भी फूलों की लेन्स होती हैं, फूलों की गलियां होती हैं। और मिलकर इस सेंचुरी को बेहतर करें। इस सेंचुरी को बेहतर कौन करेगा? उसके बेटे करेंगे और हम ही तो उसके बेटे हैं, वो कहते हैं। अच्छा, अगर हमने मेहनत की, कोशिश की, सेंचुरी बेहतर हो गई, लेकिन हमें उसका क्या फायदा है? हमें फायदा ये है कि बाद में आने वाले जो लोग होंगे हमें याद रखेंगे, जैसे चर्चिल को याद रखते हैं, जैसे इकबाल को याद रखते हैं, जैसे गांधी को याद रखते हैं। जो आने वाले लोग हैं वो आके याद रखेंगे कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए। राइटर कहता है राइटर इमेच्योर नहीं है, ही इज मैच्योर वन। लोग उससे सवाल करेंगे जी अच्छा हमें याद रखेंगे, चाहे हमारे मज़ारों पर या हमारी कब्र पर ढोल भी पीटते रहें, हमें क्या फायदा है उसका, हम तो मर जाएंगे। तो पोइट उसका भी सोल्यूशन बताता है। पोइट कहता है हाँ, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो उस वक्त आपका दिल चाहेगा उन जगहों को देखने के लिए जहाँ पर तुम मेहनत करते रहे थे, काम करते रहे थे। तो उस वक्त ये तुम्हें बड़ी तस्कीन हासिल होगी, बड़ा लुत्फ की बात होगी, तुम इन चीज़ों को सोचकर बहुत खुश होगे, तो तुम्हें अपनी हयात में इसका एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेट अस सी, आइए देखते हैं पोएम को। ही इज अ प्रोग्रेसिव पोएट, ही इज नॉट अ नेचुरलिस्ट। ये नेचुरलिस्ट नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। Standing upon the shore of all we know, standing upon the shore, किनारे पर ठहरे हुए, of all we know, अपने इल्म के साथ, all we know, अपने इल्म के साथ, we linger, हम हिचकिचाते हैं, for a moment, लम्हे भर के लिए, doubtfully, शक व शुबात में। जिंदगी के समंदर के किनारे पर ठहरे हुए थोड़े से इल्म के साथ हम हिचकिचा जाते हैं, थोड़ा इल्म होने की वजह से हिचकिचा जाते हैं, शक व शुबात में पड़ जाते हैं। Then with the song with upon our lips, फिर अपने होंठों पर एक गीत सजाए, sail we, हम सफर शुरू कर देते हैं, across the harbor bar, इस सहल समंदर को पार करते हुए, सहल की रेत को पार करते हुए, बंदरगाह को पार करते हुए हम जिंदगी के समंदर में उतर जाते हैं। नो चार्ट टू शो, हमारे पास जिंदगी का कोई मैप नहीं है, कोई चार्ट, कोई नक्शा नहीं है हमारे पास जिंदगी का। नो लाइट टू वार्न ऑफ रॉक्स, और कोई मीनारा रोशनी नहीं है जो हमें वार्न करे कि कहाँ पर चट्टानें छुपी हुई हैं। आप लोग जिंदगी में ट्रैवल करते हैं, कोई पता नहीं है कि कल के दिन क्या होने वाला है, या उससे नेक्स्ट डे क्या होगा, या आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा आपकी जिंदगी में, कौन से मसाइल देखेंगे, कहाँ पर मसाइल छुपे हुए बैठे होंगे। अगर हमें पता हो तो हम उस गली से, उस रोड से, उस कॉर्नर से गुजरेंगे ही नहीं। लेकिन ये इंसान की बेबसी है कि इंसान को अपने फ्यूचर का पता नहीं है और फ्यूचर में किस जगह पर कौन सी मुश्किलात उसका वेट कर रहे हैं, कौन सी मुश्किलात से उसका सामना होना है, ये इंसान को पता नहीं है। समंदर के अंदर जब शिप जा रहे होते हैं, पानी से तकरीबन 3 मीटर 4 मीटर या 10 मीटर नीचे चट्टानें होती हैं। समंदर में ही पूरी दुनिया है। जैसे हमारे यहाँ जरखेज ज़मीन है, हमारे पास जैसे सैंड है, रेत है, रेतले इलाके हैं, जैसे यहाँ पर पहाड़ है, समंदर में भी ऐसी ही दुनिया है नीचे। तो कहीं जहाँ पहाड़ होते हैं और पानी ऊपर 5 मीटर तक ठहरा हुआ है, नीचे पहाड़ है,
बड़ा शिप जब जाता है तो उस पहाड़ से टकरा जाता है, उस शिप को पता ही नहीं होता कि नीचे पहाड़ छुपा हुआ है। जिंदगी भी ऐसे है, पता ही नहीं होता कि किस जगह पर मसाइब छुपे हुए आपके लिए, अदरवाइज तो आप उस जगहों पर जाए ही ना कभी। लेकिन इंसान की बेबसी ये है कि इंसान को पता ही नहीं है कि किस जगह पर वो पहाड़, वो रिस्की, वो खतरात छुपे हुए हैं। अच्छा, जब पहाड़ का पता चल जाता है, किसी भी चट्टान का पता चल जाता है कि इस चट्टान के साथ शिप टकरा गया है, उसके बाद जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस कंट्री के करीब तरीन वो चट्टान होती है, डिस्कवर हो जाती है भी यहाँ पर शिप डिस्ट्रॉय हो गया है, वहाँ के लोग आकर वो उस चट्टान के ऊपर एक मीनार खड़ा करते हैं और उसके ऊपर रोशनी लगा देते हैं। उसे लाइट हाउस भी कहते हैं। वो ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाला कोई भी शिप हो तो इस रास्ते पर ना आए, उसे अंदाजा हो जाए कि इस जगह जहाँ लाइट जल रही है समंदर के दरमियान में, मिड में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे चट्टान है। हमारे पास जिंदगी के अंदर कोई मीनारा रोशनी नहीं है जो हमें बता सके कि किस जगह पर मुश्किलात या चट्टानें छुपी हुई हैं जो कि हमारे लिए खतरा है। क्लियर? राइटर कहता है गो कि हमारे पास ना तो जिंदगी का कोई मैप है प्रॉपर, ना ही हमारे पास ये इल्म है कि कहाँ पर खतरात और चट्टानें छुपी हुई हैं। बट लेट अस येट पुट फोर्थ करेजियसली, बट लेट अस, लेकिन फिर भी आओ, येट पुट फोर्थ, आगे बढ़ते हैं, करेजियसली, जुर्रत के साथ आओ, ताहम फिर भी हम हौसले के साथ आगे बढ़ जाते हैं। पोइट कहता है गो कि हमारा इल्म महदूद है, हमारे पास नॉलेज कम है, लेकिन फिर भी आओ, जुर्रत करो और जिंदगी के समंदर में आगे बढ़ जाओ। क्या करने के लिए? लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, इस पूरी सेंचुरी को बेटर करने के लिए आओ, फिर भी आगे बढ़ जाओ। डरो नहीं, बल्कि जुर्रत रखो। ये मत सोचो कि आपने मर जाना है, आपको बीमारियों ने खा जाना है, आपको मसाइल ने दो चार करना है, ये मत सोचो, बस आगे बढ़ जाओ जिंदगी में जुर्रत के साथ। और नेचुरलिस्ट जो पोइट होते हैं वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, बैठे रहो इन दरख्तों के साथ, इन पहाड़ों के साथ, इन चीज़ों के साथ बस बैठे रहो। नेचुरलिस्ट ये दावा करते हैं कि जी बस काम पुरसुकून, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये एंटी नेचुरलिस्ट हैं, ये कहते हैं आगे बढ़ो, गो के इल्म कम है फिर भी आगे बढ़ो बेटरमेंट के लिए। ऑल्दो द पाथ बी टर्चुअस, गो के रास्ता दुश्वार है, टर्चुअस पेचदार, दुश्वार, एंड स्लो, गो के रास्ता ऐसा रहो, ऐसा है, स्लो है और पेचदार है, दुश्वार है। ऑल्दो इट ब्रिसल्स, गो के रास्ता भरा हुआ है, विद द 1000 fears, हजारों खतरात से ये रास्ता भरा हुआ है। सूर की उसकी गर्दन के जो बाल होते हैं स्टिफ, उसको ब्रिसल्स कहते हैं कि भरे होना। राइटर कहता है कि गो के रास्ता सारा का सारा दुश्वार है, गो के ये रास्ता हजारों खतरात से भरा हुआ है, ब्रिसल्स है। तो होपफुल आई ऑफ यूथ इट स्टिल अपीयर्स, लेकिन पूरी उम्मीद आंख को ये रास्ता फिर भी ऐसे लगता है, अलेन बाय विद द रोज एंड हासून ग्रो, कि ये एक ऐसी गली है जिसके अंदर गुलाब उगे हुए हैं, जिसके अंदर खुशबूदार झाड़ियां उगी हुई हैं। हासून, खुशबूदार झाड़ियां। पोइट कहता है गो के रास्ता बहुत दुश्वार है, लेकिन अगर आंख होपफुल है, आंख में उम्मीद है, तो ये रास्ता उस होपफुल आंख के लिए कैसा है? खुशबूदार झाड़ियों से भरा हुआ है। ये रास्ता गुलाब से भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन शर्त यह है होपफुल आई के लिए। नेचुरलिस्ट दे हैव नो होप, कंटेंटमेंट दे है, वो कनात, बस बैठे रहना। और ये जो एंटी नेचुरलिस्ट है, ये प्रोग्रेस, दुश्वार तरीन रास्ता क्यों नहीं है? चाहे सामने मलेरिया आ गया तो चीज फाड़ डाला, मलेरिया को खत्म कर दिया, क्लोरोक्विन बना दी, रेसोचिन बना दी, टाइफाइड आ गया, एंटीबायोटिक बन गई, आगे प्रोग्रेसिव, एड्स आ गई, दूसरी तीसरी बीमारियां आ रही हैं, उनको काटते हुए जा रहे हैं। इसीलिए साथ बड़ी बीमारी का भी इलाज तलाश किया जा रहा है। We hope it may be. Alain by with the rose and Hasun grow,
होपफुल आपको ऐसे लगेगा जैसे ये फूलों से और खुशबूदार झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता है, भरी हुई गली है। वी होप इट मे बी, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। वुड दैट वी माइट नो, अरे काश कि हम जान सकते। वुड वी माइट लुक इनटू द फ्यूचर ईयर्स, अरे काश कि हम मुस्तकबिल के सालों में झांक सकते। पोइट की ख्वाहिश देखें कि ह्यूमन बीइंग्स की बेहतरी के लिए वो चाहता है कि अरे काश कि हम फ्यूचर में देख सकते। तो देख सकते तो हम लोगों का खतरात से सामना ही ना होने देते, उनके सोल्यूशन करते। लेकिन इंसान टाइम एंड स्पेस के अंदर जकड़ा हुआ है, इंसान इस टाइम को तोड़ नहीं पा रहा। लेकिन पोइट की ख्वाहिश है कि इंसान प्रोग्रेस इतनी करे तो कहता है काश कि हम फ्यूचर के सालों में देख सकते। ग्रेट ड्यूटीज कॉल, बड़ी बड़ी ड्यूटीज पुकारती हैं, बड़े बड़े फ्राइज पुकारते हैं। द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, 20वीं सदी बड़े बड़े फ्राइज का तकाजा करती है। मोर ग्रैंडली डोर देन दोज विच केम बिफोर, और ये 20वीं सदी, द 20th सेंचुरी मोर ग्रैंडली डोर, ये ज्यादा ग्रैंडली, बहुत ज्यादा, डोर खजाने से भरी हुई है। देन दोज, उन सेंचुरियों के मुकाबले में, दोज का मतलब दूसरी सेंचुरियां, वो जो पहले गुजर गई हैं, विच केम बिफोर, जो पहले आ चुकी हैं। पोएट ये हौसला देता है, कहता है कि 20वीं सदी के दामन में ज्यादा खजाने मौजूद हैं और इंसानों को क्या करना है, 20वीं सदी के ह्यूमन बीइंग्स को क्या करना है, दे हैव टू डिस्कवर दीज ट्रेजर्स, इन खजानों को डिस्कवर करना है उन्होंने। ग्रेट ड्यूटीज कॉल, बड़े बड़े फराइज का तकाजा होता है। द 20th सेंचुरी मोर ग्रैंडली डोर्ड, 20वीं सदी ज्यादा खजानों से भरी हुई है। देन दोज विच केम बिफोर, उन सदियों के मुकाबले में जो सदियां पहले गुजर चुकी हैं। समन्स, पुकार रही है। हु नोज व्हाट टाइम में होल्ड इन स्टोर, कौन जानता है कि वक्त के दामन में क्या खजाना भरा हुआ है। कौन जानता है कि आने वाले वक्त ने हमारे लिए क्या खजाने लिए हुए हैं। किसको पता है वक्त के दामन में कौन कौन से खजाने मौजूद हैं। Who knows, कौन जानता है, what time may hold, कि वक्त ने क्या अपने दामन में लिया हुआ है, इन स्टोर, रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है अपने दामन में। और what great deed the distant years may see, पता नहीं आने वाले साल कितने बड़े बड़े कारनामे देखें। और what great deed, कितने बड़े बड़े कारनामे the distant years may see, आने वाले साल देखें। Time is not the highly attributed authority, इवन कि हम टाइम में जकड़े हुए हैं, लेकिन पोएट चाहता है कि टाइम इंसान के पांव के नीचे हो और इंसान चाहे तो टाइम का दिल धड़के, इंसान चाहे तो टाइम का दिल ना धड़के। इसीलिए पोएट कहता है कि पता नहीं आने वाले साल जो हमारे मरहून मिन्नत हैं। टाइम हमारा मरहून मिन्नत है, हम टाइम के मरहून मिन्नत नहीं है। ही इज प्रोग्रेसिव, हर अथॉरिटी के एंटी जाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि टाइम अगर अथॉरिटी हो तो नहीं, टाइम हमारा मरहून मिन्नत है। टाइम की वैल्यू होती है उस वक्त जब पता चलता है। 1888 की वैल्यू इसलिए है बिकॉज इस ईयर के अंदर टी एस इलियट मौजूद था। हु इज द रिफॉर्मर नॉट ऑफ अ कंट्री, नॉट फॉर अ नेशन, ही वाज द रिफॉर्मर ऑफ द होल ह्यूमन बीइंग। और 1888 की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसमें टी एस इलियट ने जन्म लिया। तो टाइम मरहून मिन्नत है टी एस इलियट जैसे हीरोज का, या इतने बड़े बड़े डीड्स जो परफॉर्म करता है इंसान, उनका टाइम मरहून मिन्नत है, ना कि इंसान मरहून मिन्नत है टाइम का। पता नहीं आने वाले साल कितने बड़े बड़े कारनामे देखें। व्हाट कॉन्क्वेस्ट ओवर पेन एंड मिजरी, पता नहीं क्या फतह पाई जाए पेन पर और दुखों पर, मिजरी पर, पता नहीं दुखों पर और तकलीफों पर कितनी फतह पा ली जाए। इंसान के दुख और तकलीफ पता है ना, कोई मर जाता है बहुत अजीज, अम्मी जी मर जाती हैं, बड़ा दुख है। इस दुख का भी कोई इलाज होना चाहिए। कैंसर है, एड्स है, पता नहीं कौन कौन सी बुरी बीमारियां हैं, उनके पता नहीं कितने इलाज हो जाते हैं और वाकई 20th सेंचुरी के अंदर हुए भी हैं। What heroes greater than were ever of you,
व्हाट हीरोज, पता नहीं कितने बड़े बड़े हीरोज, ग्रेटर, ज्यादा अजीम, वर एयर ऑफ योर का मतलब पुराने, पुरानों के इसमें पता नहीं कितने बड़े बड़े अजीम हीरोज पैदा हो जाएं। हमारे यहाँ पर एक बात है, एक बुरी बात है, हमारा एक हीरो जो आ जाता है हम उससे आगे किसी हीरो को नहीं जाने देते। वहां पर शेक्सपियर आया है तो बेटर देन शेक्सपियर भी आया है, इब्सन। वहां पर एक हीरो आता है तो उससे आगे कोई और हीरो भी आता है, कैपेसिटी लोगों के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक वासिफ अली वासिफ आया है तो अगला वासिफ अली वासिफ नहीं आने देना, नहीं जी नहीं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक इकबाल आया है तो दूसरा इकबाल नहीं आएगा, तो इकबाल का मुकाबला करते हो, हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों? हमारे ज़हन तंग हैं कि नहीं जी इकबाल से ऊपर नहीं आना। गो के अब्बू जी भी इकबाल से बेहतर हो तो वो भी इकबाल के बराबर नहीं हो सकते। उसकी बेटी कहती नहीं नहीं आप नहीं हो सकते, अपने अब्बू को इनकार कर देंगे कि आप इकबाल से बेटर नहीं हो सकते। पता नहीं कितने इकबाल आकर गलियों में गल सड़ गए हैं, मर गए हैं, कितने इकबाल, उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो यहाँ पर देखें, आपकी पोएम्स भी होती हैं, उर्दू में पोएम्स पढ़ते हैं, किस तरह की पोएट्री होती है? शब भर जंगल में बैठा रहा, किसी ने पूछा ही नहीं क्यों बैठा रहा। दैट इज पोएट्री, दैट इज पोएट्री। देखें ये होती है पोएट्री। पोएट्री कर रहा है, वो बता रहा है, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। बेटरमेंट की बात है, कैपेसिटी है, नए से नए लोगों को आने के लिए वेलकम है, उनको इनकरेजमेंट है उसके अंदर। तो इसी तरह जब ऐसा कुछ होता है तो फिर माशरे तरक्की करते हैं, नेशन तरक्की करती है। बल्कि आज तो जो शख्स नेशन की बात करे वो बुरा है, जो आज किसी एक कंट्री की बात करे वो भी बुरा है, जो आज यूनिवर्सलिटी की बात करे, यूनिवर्सल ग्लोब की बात करे, यूनिवर्सल बात करे, जो तमाम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेहतर हो, वो बात अच्छी है। आज बांग्लादेश ने एटम बम बना लिया, दैट इज वेरी बैड थिंग। आज एक बांग्लादेशी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि दुनिया का कोई मुल्क भी अब एटम बम चला ही नहीं सकेगा, दैट इज यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल चीज तो ये है, ये बड़ी बात है। यहाँ वेलकम है और हमारी पोएट्री में वेलकम नहीं है। नेक्स्ट देखें तो आने वाले साल पता नहीं क्या क्या देखें। बट इफ दिस सेंचुरी इज टू बी मोर ग्रेट, लेकिन अगर इस सदी ने बेहतर होना है देन दोज बिफोर, उन सदियों के मुकाबले में जो पहले गुजर गई हैं, हर सन मस्ट मेक हर सो, उसके बेटे ऐसा उसे बनाएंगे। अगर इस सेंचुरी ने अजीम सेंचुरी बनना है तो इसके बेटे इस सेंचुरी को अजीम बनाएंगे। एंड वी आर आवर सन्स, और हम ही तो इसके बेटे हैं। एंड वी मस्ट गो, और हम लाजमी आगे बढ़ेंगे। विद ईगर हार्ट्स, जज्बे वाले दिलों के साथ, मचलते हुए दिलों के साथ, टू हेल्प, मदद करने के लिए, मोल्ड वेल हर फेट, इसकी किस्मत को बेहतर करने के लिए, इसकी किस्मत की बेहतरी के लिए हम मदद को मचलते हुए दिलों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो पोएट ने ये नहीं कहा, पोएट हर चीज सेंसिटिव तरीके से, तरतीब से, बेहतर तरीके से रख रहा है। पोएट ने ये कहा कि हम इस सेंचुरी की किस्मत को दोड़ा तेरा कर देंगे, बदल देंगे, नहीं, वी हैव टू हेल्प इट, हम मदद करेंगे। वी आर नॉट द अथॉरिटी, हम मदद करेंगे। सिर्फ एक नेशन मदद नहीं करेगी, एक शख्स मदद नहीं करेगा, सारी दुनिया के लोग मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अब एक शख्स है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसने कोई बेहतरी का कोई एक छोटा सा काम भी कर दिया है, बेशक किसी को पानी का गिलास भी पिला दिया, तो ही इज इन्वॉल्व इन द हेल्प, वो हेल्प में शामिल है। गैलीलियो गैलीली, he was a great scientist of 16th century। गैलीलियो गैलीली अगर बहुत ज़्यादा लोगों को दे रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कवर करके दे दी हैं, तो उसका एक मिल्क मैन भी है जो उसको आके मिल्क प्रोवाइड करता है। ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द हेल्प, हेल्प में वो भी शामिल है जो कि अपने ताई हेल्प कर रहा है। और उस मिल्क मैन की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो उसने बड़ा सफर किया है,
उसको पैसे नहीं मिलते थे बड़ा बड़ा अरसा, बड़ा हौसले वाला शख्स था, वो भी तो एक हिस्सा है उसका। तो जो शख्स जिस जगह पर बैठा हुआ है मेरे सामने और दूर पर है किसी मुल्क के अंदर भी, उसने 20वीं सेंचुरी को बेहतर करने के लिए हेल्प करनी है, ना कि सेंचुरी की बेहतर कर देना है, हेल्प करनी है। तो हर शख्स जिस स्टेज पर भी है, पोएट ने उसको एड्रेस कर दिया है। ये पोएट की खूबी है, जिस स्टेज पर भी जो शख्स है उसको पोएट ने एड्रेस कर दिया, हेल्प का लफ्ज इस्तेमाल कर सेंचुरी के लिए हर का इस्तेमाल किया। शिप के लिए हर इस्तेमाल होता है, कंट्री के लिए भी हर, और सेंचुरी के लिए भी हर। एंड सी दैट, और फिर देखना, शी शैल गेन सच प्राउड स्टेट, तो ये सेंचुरी आला मकाम हासिल कर लेगी। एंड शैल ऑन फ्यूचर सेंचुरीज बेस्टो, और फ्यूचर आने वाली सदियों को बेस्टो, ये अता करेगी। क्या अता करेगी? लेगेसी, विरसा अता करेगी। 20वीं सदी ने हमें कंप्यूटर दिया, हमें ईमेल सिस्टम दिया, हमें मोबाइल दिया, उसने मेडिकल के शोबे में पता नहीं कितनी डिवाइसेस प्रोड्यूस कर दी। तो ये लेगेसी है जो 21वीं सदी ने गेन की है। हम पर भी फर्ज बनता है कि हम इस सेंचुरी को ज़्यादा बेहतर करके अगले आने वाली सेंचुरी को ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करके जाएं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। कोई ये कहना चाहता है, मे वी इन फ्यूचर ईयर्स बी फाउंड विद दोज। अब यहाँ से एक नई बात शुरू की है पोएट ने। अब पोएट ये बताना चाहता है कि अगर आप लोग हेल्प करेंगे इस सेंचुरी की किस्मत को दोरा तेरा बेहतर करने के लिए, तो फिर आपको उसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है, इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में बताएगा पोएट कि आपको फ्यूचर ईयर्स में जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपको याद रखा जाएगा। मे वी इन फ्यूचर ईयर्स बी फाउंड, फिर शायद फ्यूचर ईयर्स में हम पाए जाएं, विद दोज, उन लोगों के साथ, हु ट्राई, जिन्होंने कोशिश की, टू लेबर फॉर द गुड, मेहनत की, फॉर द गुड, अच्छाई के लिए, अंटिल दे डाई, मरते दम तक। हो सकता है फ्यूचर में हमारा नाम भी उन लोगों के साथ हो जो बेहतरी के लिए कोशिश करते रहे थे, मरते दम तक कोशिश करते रहे थे। एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन, और कोई और सवाल नहीं पूछा जाएगा हमारे बारे में। देन टू नो, बस ये जाना जाएगा, दैट दे हैव हेल्प द कॉस्ट विक्ट्री, कि इन्होंने मदद की थी कॉस्ट विक्ट्री, जीत के मकसद के लिए। इन्होंने जीत के मकसद के लिए हेल्प की थी। बस ये सवाल किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि ही वॉज अ ड्रंकॉर्ड, ही वॉज अ बम और नॉट, ये शराबी था या नहीं था। और ये पूछा जाएगा कि ही वॉज वेल, इसने अच्छा काम किया, दैट्स वेरी गुड, इसका नाम इन लिस्ट है। दैट विद देयर एड, और ये सोचा जाएगा विद देयर एड, इनकी मदद के साथ, द फ्लैग इज रेज्ड ऑन हाई, तरक्की का झंडा बहुत बुलंद हो गया था। और ये याद रखा जाएगा कि तरक्की का झंडा बहुत बुलंद हो गया था। सम टाइम इन डिस्टेंट ईयर्स, सवाल अब ये आ गया पोएट के माइंड में। पोएट यहीं पर भी अपनी पोएम को क्लोज कर सकता था। सवाल फिर वही है कि मरने के बाद अगर वहाँ पर ढोल भी पीटा जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मज़ार पर अगर ड्रम भी पीटा जाए तो वो तो मर गया है बेचारा, चाहे आप नीग्रोज की हुकूमत क्यों नहीं है अमेरिका पर, वो तो मर गया। लेकिन राइटर कहता है एक और आपको फ़ायदा होगा, अगर ये फ़ायदा अगर आप समझते हैं कि नहीं होगा, कि आपको फ्यूचर में याद रखा जाए। सम टाइम इन डिस्टेंट ईयर, बाज़ आने वाले सालों में, व्हेन वी आर ग्रोन, जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ग्रे हेयर, और बाल हमारे सारे सुरमई हो जाएंगे, बाल हमारे सारे ग्रे हो जाएंगे, वाइट सफ़ेद हो जाएंगे, एंड ओल्ड, और हम खस्ता हाल बूढ़े हो जाएंगे। वट एवर बी आवर लॉट, हमारी किस्मत चाहे कुछ भी हो, चाहे हम दुनिया के कामयाब लोग हों या नाकाम लोग हों, किस्मत हमारी कुछ भी हो, वी शैल डिज़ायर टू सी अगेन द स्पॉट, हम उस जगह को दोबारा देखने की ख्वाहिश करेंगे। जिस तरह आज जहाँ पर आप बीए कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँचें, हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, या आपका लॉट किस्मत बहुत अच्छी हो, या आपकी किस्मत कुछ भी ना हो, ज़ीरो हो, फिर भी आप चाहेंगे
इस घर को, इस ट्री को, इन चेयर्स को, इस अपने तमाम दोस्तों को दोबारा देखना चाहेंगे आप। जिस तरह के मैट्रिक में ख्वाहिश हुआ करती थी, जब मैट्रिक पास कर रहे थे तो यही ख्वाहिश थी एक बार बाहर निकल जाए यहाँ से स्कूल से, फिर आएंगे स्कूल में और फिर कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा, मैडम से मिलेंगे, मिस से मिलेंगे, बाहर पार्क में ठहरेंगे, हमें कोई पूछे। इस जगह को दोबारा देखना जरूर है। मैट्रिक याद आती है मैट्रिक की सनत से नहीं, मैट्रिक दोस्तों से, उस रूम से और उस टीचर से और पूरी क्लास से वाबस्ता है। तो इसी तरह जब भी कोई शख्स मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो जब वो ओल्ड एज में पहुंचता है तो दोबारा आकर वापस उसको उसी जगह को देखने की ख्वाहिश रखता है। आपको 8th क्लास में या 9th क्लास में एक लेसन पढ़ाया गया था जिसमें एक बूढ़ा आदमी एक लैंप परचेज करके ले जाता है, बड़ा सारा टावर लैंप होता है, वो जिनी वाला एक लेसन था। किसी को नाम याद है उसका? एक बहुत बड़ा पोल होता है, लैंप पोल होता है, वो उसे परचेज करके ले जाता है। उसका ग्रैंड सन पूछता है कि पापा ये क्या है, तो कहता है कि यहाँ पर जब मैं लड़का था उस तक मैंने कुल्हाड़ी से एक निशान लगाया था। तो उसके बचपन की याद होती है, तो अब बुढ़ापे में उसको पॉलिश करवाता है, परचेज करता है और अपने घर में जाकर लगाता है उसे। इट्स मीन दैट के एविडेंस ये हैं कि हमें अपने माजी को, इसीलिए बेटा इस टीएस इडियट को कहते हैं टीएस इडियट, क्योंकि बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है। जी, we shall desire to see again the spot, हम उस स्पॉट को दोबारा देखने की ख्वाहिश करेंगे। which whatsoever, जो कि whatsoever we have been or done, जहां पर हम जो कुछ करते रहे या हमने जो कुछ मुकम्मल किया। आपको जो टास्क मिला हुआ था आपने कंप्लीट किया, फिर भी आप उस जगह को देखना चाहेंगे। आप टास्क कंप्लीट नहीं कर सके लेकिन वहां पर काम करते रहे, आप फिर भी उस स्पॉट को देखना चाहेंगे। और टू व्हाट डिस्टेंट लैंड्स वी मे हैव गॉन, या उन सरजमीनों पर हम दोबारा जाना चाहेंगे जिन दूर दराज की सरजमीनों पर हम आते जाते रहे हैं, हम शायद अपनी जवानी में, बचपन में गए हों। थ्रू ऑल द ईयर्स विल नेवर हैव बीन फॉरगॉट, थ्रू ऑल द ईयर्स, और बाकी रहने वाले सालों में, हमारे बुढ़ापे के जो बाकी साल होंगे उन सालों में हम उस मेहनत करने वाली जगह को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमेशा हमेशा उसे याद रखेंगे, उसे विजिट करेंगे, उसे देखेंगे। तो ये भी एक पोइट ने कहा है, आपको बुढ़ापे में ये सारी चीज़ें आपके जीने का एक सहारा होगी, आपके एक एंटरटेनमेंट होगी, आपका एक प्लेस होगा जहाँ आप देखेंगे और अपनी मेमोरीज में खो जाएंगे। मिस्टर चिप्स पढ़ा था ना, तो उसको देखे कि वो भी एंड पर अपनी उन तमाम जगहों को याद रखता है जिन जगहों पर वो काम करता रहा था, मेहनत करता रहा था। नाउ ओपन योर की बुक, open your key book, acute English words, tell me the page number, give me a book. Departure and arrival, acute English words, advanced publisher by M.K. Bhutta. Page number 44. एग्जाम में कोई भी स्टेंजा आएगा, आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और आखिर में कमेंट्स लिखेंगे। रेफरेंस देखें। These lines have been taken from the poem Departure and Arrival written by T.S. Eliot. Context. The poem is optimistic. Poem पूरा उम्मीद पोएम है। इस ऐसी पोएम है जिसके अंदर उम्मीद पाई जाती है। And just the people, और लोगों को ये पोएम हिदायत करती है। Boldness and again boldness and always boldness. जुरत, फिर जुरत,
हमेशा जरूरत। दूसरा लेसन इस पोएम का है, टू ट्रेवल होपफुली इज अ बेटर थिंग, पुरुमीद तरीके से सफर करना बेहतर है। व्हेन टू अराइव, मंजिल पर पहुंचने की निस्बत, मंजिल पर पहुंचना कुछ नहीं होता, पुरुमीद सफर सब कुछ होता है। आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक कैसे की, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने यूं गया और मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया, मैंने यूं सर्टिफिकेट पकड़ा और मैट्रिक हुई। मैट्रिक कैसे की जब आप कहेंगे, मैट्रिक कैसे की जब आप कहेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जिस स्कूल कौन सा था, ग्राउंड कौन सा था, लोग कौन से थे, लोकेलिटी कौन सी थी, सिटी कौन सा था, दोस्त कौन से थे, टीचर कौन से थे, गपशप कितनी होती थी, कौन कौन से चुटकुले होते थे, कौन कौन सी वहाँ पर जोक्स होती थी, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो वो होपफुल ट्रेवल जबरदस्त चीज़ है, असल चीज़ है, ना कि उस मंजिल पर पहुँचना सब कुछ है। एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर, और असल कामयाबी मेहनत में है। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के मुताबिक, इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, टू लीव द वर्ल्ड बेटर, कि हम दुनिया को बेहतर करके छोड़ें, देन वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, जैसा कि हमने अपने फोर फादर से रिसीव किया है। बाद में बात करूँगा। टी.एस. इलियट कहता है ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम दुनिया को बेहतर करके छोड़ें उसकी निस्बत जो हमने अपने फोर फादर से गेन की है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है, लेट योर करेज राइज विद डेंजर, अपने हौसले को बुलंद करो डेंजर का साइज देकर, खतरे का साइज देखकर अपने हौसलों को बुलंद कर लो। फ्रॉम टूडे एंड फ्रॉम दिस प्लेस, आज से और इसी जगह से, देयर बिगिंस अ न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आज से और इसी जगह से दुनिया की हिस्ट्री में एक नए दौर का आगाज होता है। कमेंट्स, द पोएम बिल्ड आवर फेथ इन द पावर ऑफ आवर स्ट्रगल, पोएम बिल्ड करती है हमारा फेथ, हमारा ईमान पुख्ता करती है स्ट्रगल की ताकत पर, स्ट्रगल की ताकत पर हमारा ईमान पुख्ता करती है। ओके, नाइस। क्या कहते हैं, कौन है इधर?